नई दिल्ली में द्वारका के आईटीसी वेलकम होटल में मिस डिवाइन ब्यूटी 2021 का आयोजन किया गया। डिवाइन ब्यूटी के फाउंडर एंड चेयरपर्सन दीपक अग्रवाल के देखरेख में ये कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में पूरी इंडिया से हजारों के तादाद में लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। उन हजारों में से महज 48 गर्ल चुने गए और उन 48 गर्ल में से 17 गर्ल्स को सिलेक्ट किया गया और ये 5 दिन का ये कार्यक्रम रहा। उन 5 दिनों में चुने गए 17 गर्ल्स का ग्रूमिंग किया गया और परफॉर्मेंस करवाया गया और उन 5 दिनों में रश्मि माधुरी को बेंगलुरु से हैं, उनको मिस इंडिया अर्थ 2021 के खिताब से नवाजा गया। डिवाइन ग्रुप took an initiative to award our best leader, who was the most voted leader, and the votes were given by the public. And so, Divine Group wants to recognize the efforts of Ms. Vanshika Parmar. So she did a lot of work in the society for the welfare of the human being. So that's why we are giving this award to Ms. Beauty with Responsibility Award to Vanshika Parmar. And now, as you can see, we have a winner, Rashmi Madhuri. Well, I'm very grateful to Divine Group Organization and Deepak Agarwal sir for creating a platform wherein we girls to get a plethora of opportunities to showcase our advocacies, because beauty pageants are not just about, glamour and all that we see. It's more about standing for a cause, celebrating our womanhood. So today, having a platform where we get to speak and be the voice for the unheard is indeed a great privilege, and having been represented India internationally was a biggest honor. And today, when the new queen has taken up the spot, I'm sure she is going to do fabulous in her international. Rita is our Miss Divine Eco Angel. Thank you, sir. It's been a great opportunity to be a part with Miss Divine Group, and I'm looking ahead to work with the organization, and it has given me a platform to raise my voice against social causes which somehow we haven't been a part of due to our busy schedules, and I'm looking forward to work towards my initiative more. So yes, and I'm congratulating Rashmi. She's going to represent our country in the Major 4 pageant, which is Miss Earth 2021, and I hope she's going to do really well, and she has all the potential to do well in the pageant, and all the best, Rashmi. Well, hello everyone, I'm Vanshika Parmar. First of all, I would like to extend my sincere gratitude to Divine Group India for providing me with this golden opportunity. And for me, Miss Divine Beauty is not just an opportunity to voice my opinions and choices, to be heard and to bring about a significant change in this world, but also to realize my childhood dream of contributing towards a greener, healthier and sustainable tomorrow. डिवाइन ग्रुप कब से कंपटीशन जो है करवा रहा है? डिवाइन ग्रुप एक्चुअली जब ये शुरू हुआ था तो हुआ इवेंट से ही शुरू था, पर वो डिवाइन एज इन जो हमारा हिंदुइज्म और इससे रिलेटेड हमने कुछ शुरू किए थे, पर वो किए थे यूएस में 2007 में 8 में 9 में, तो हमने ऐसे शुरू किया इसको। 9th में क्या हुआ, मिस यूएस से हो रहा था लॉस एंजल्स में। सो उस टाइम पे मुझे ये लगा कि मेरे कुछ नॉन थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो मुझे लगा कि हाँ ये एक अच्छा जरिया है टू लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का। वो लड़कियां जो लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकती हैं, वो ये प्लेटफॉर्म अगर उनको मिलता है तो उनकी आवाज़ सुनी जाएगी, जो वो करेंगी लोग उसको फॉलो करेंगे। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। काफ़ी टाइम मिलता, मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए, दुबई में भी किया, हर जगह ऐसे कुछ काम किए जिससे कि वुमेन एम्पावरमेंट हो। फिर हमने प्लान किया 2017-18 में, फिर हमारे कुछ साथियों ने बोला कि हाँ इस डायरेक्शन में आपको प्रोसीड करना चाहिए, तो हमने अपने साथ की फ्रेंचाइजी जो है वो ली। उसके बाद में मिस इंटरकॉन्टिनेंटल की, और उसके बाद से हम करते आ रहे हैं। 2019 में हमने पहला मिस डिवाइन ब्यूटी और नेशनल पेजेंट्स नेम ये शुरू किया। उसमें हमारी जो विनर थी शी वॉज तेजस्विनी मनोगना। तो तेजस्विनी मनोगना आज एक बहुत अच्छा जाना माना चेहरा है, और वो अपने स्तर पे बहुत बड़ा अच्छा काम कर रही है पूरे मानवता के लिए। ऐसे ही हमारी तन्वी खरोटे हैं हमारी 2020 की विनर।
इन्होंने गांव-गांव में जा कर के ऐसे गांव में बिजली दी है जिन गांव में गवर्नमेंट ने भी नहीं दी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई फील लाइक इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हैज बीन गिवन टू मी। So I really hope and pray that I'm able to carry millions of people's dreams and aspirations that I take when I represent India internationally as well. So I'm very humbled to have been crowned. Thank you so much. The name of my project is called Project Cycle, and through Project Cycle we install pad incinerator, provide menstrual hygiene products and education to rural women who are transitioning, young adolescent women who young adolescent girls who are transitioning into womanhood, and as well as women who are not aware of menstrual hygiene. So that way, they not only understand the basic requirements and they know so they don't just know the right menstrual products and things like that. Apart from it, they also understand that they'd be able to save flora and fauna by using pad incinerators, which helps with menstrual waste management as well. So that way we also get to save the beautiful nature that we have in us. जब लड़कियां अप्लाई करती हैं तो उनके मन में बहुत फीलिंग्स होती हैं कि मुझे विनर बनाया गया है। तो हजारों लड़कियां अप्लाई करती, तो हजारों लड़कियों की जो स्क्रूटनी है, जो उनको विश्लेषण किया जाता है, उनके चलने, उनके बोलने, वो क्या काम करती हैं, अभी तक वो क्या करती रही हैं, तो अभी इस इंडस्ट्री को लेकर के उनकी क्या सोच क्या है, क्या करना चाहती हैं वो आगे, क्या उनको सिर्फ बॉलीवुड में जाना है या फिर उनको कुछ सोशल वर्क करना है, क्या करना है। तो हम फिर उनमें से निकालते हैं टॉप 500 से 100 कितना, और इसके पीछे सेट है बहुत, मैं इसे नहीं लेता हूँ। जैसे ज्यूरी पैनल, बहुत बड़ा ज्यूरी पैनल है, सेट ऑफ 16 पीपल एक्चुअली, और 16 लोग मिल करके फिर 100 होती है, 100 के बाद 50 होती है, 50 को हम पब्लिक के सामने अनाउंस करते हैं और टॉप 50 के बाद हमारी टॉप 15 होती है। तो टॉप 15 में इस बार 3 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज थी हमारी, ड्यू टू देयर एडवोकेसीज, मतलब जो वो काम कर रही हैं वो इक्विवेलेंट था, बराबर था उन लड़कियों के जो टॉप 15 में थी, तो उनको भी लेना था। हमने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, हमारा स्टाइल चेंज कर दिया, हमने 18 दी। अब ये जो गर्ल्स हैं तरह तरह के पैमाने पे, जो मैंने आपको बताया क्या काम करती हैं, मानवता के लिए क्या काम है, इनकी सोच क्या है, बोलती कैसे हैं, चलती कैसे हैं, उठती कैसे हैं, ये किसी के लिए एग्जाम्पल बनने जा रही है। आगे की प्लानिंग है, जैसे इस बार क्या हुआ, 48 गर्ल्स स्टार्टेड टुक देयर इनिशिएटिव, और उन्होंने अपने अपने प्रोजेक्ट्स चलाए, हर जगह अपने पूरे इंडिया में उन्होंने प्रोजेक्ट चलाए अंडर द गाइडेंस ऑफ डिवाइन ग्रुप। प्रोजेक्ट्स क्या थे, उनको बूस्टअप मिला जब पब्लिक ने उनको सपोर्ट किया। पब्लिक ने कहा कि नेचुरल हाइजीन को सपोर्ट किया, कार्बन फिल्ट्रेशन को सपोर्ट किया, प्लांटेशन को सपोर्ट किया। वो उनको जब ये प्लेटफॉर्म मिला तो सभी पेजेंट पेजेस और सब ने सपोर्ट किया, तो उनका मोरल बूस्ट हुआ। तो 48 प्रोजेक्ट्स पूरे ऑल इंडिया में चले हैं। टाइम कम था, कोविड रिस्ट्रिक्शंस थी, गवर्नमेंट है साथ में है, बट बहुत सारी बातें हैं हम फिजिकली नहीं करवा पाए बहुत सारी, पर वो फिजिकल हो रहा था हर जगह। तो ये था दिमाग में कि एक बार बुलाने के बाद काम करवाने से अच्छा है बूस्टअप करें हम पूरे में। अब प्लान है हजारों लड़कियों से सेम काम करवाने। क्या होता है ना, व्हेनेवर हमारी सोसाइटी में ब्यूटी पैजेंट्स या मॉडलिंग को बहुत नैरो माइंडेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, रादर देन दैट ये फील्ड ऐसा है जिसमें लड़कियों को खुद का टैलेंट पोर्ट्रे करने का चांस मिलता है, खुद की खूबियाँ, खुद में जो पोटेंशियल है वो प्रूव करने का पॉइंट मिलता है। क्योंकि फिर हमें देख के और लड़कियां, आज आप जो भी लड़कियां टीवी पे हमें देख रही होंगी, उन्हें इंस्पिरेशन मिल रही होगी कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, हमारे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। यश राज टाडा इन्होंने डायरेक्ट किया है पेजेंट, तो कुछ मैं चाहूँगा कि क्या इनको मुश्किलें आई, ऐसा कुछ? मुश्किलें तो बहुत सारी थी, पर उतना ही मज़ा भी आ रहा था, बिकॉज बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में जो मज़ा होता है, क्योंकि सब चीज़ें परफेक्ट करनी होती हैं, तो ये जो टीम वर्क था, दीपक सर, निमिषा जी, सारी लड़कियों ने जो काम करा, वो सारी कंटेस्टेंट्स ने जितनी अपनी सोशल वर्क के लिए जितनी मेहनत करी, उन सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा था। तो जहाँ पे भी स्ट्रेस आया था, इनकी मेहनत को देख के अपने आप काम करने का मन कर रहा था कि यार ये करना है। तो उसके बाद में जब जर्नी स्टार्ट हुई थी हमारी कंटेस्टेंट्स की, उसके बाद में पूरा पैजेंट डायरेक्शन और पूरा इवेंट डायरेक्शन का काम मैंने, दीपक जी ने मुझे सौंपा, और उसको सक्सेसफुली हमने कल ख़त्म करा है।
और बड़ा प्राउड मोमेंट है बिकॉज हमें नई विनर मिली है फिर से। तन्वीर जी ने अपना क्राउन पास करा है, वो भी बहुत बड़ा एक प्राउड मोमेंट है। और हमारी ब्यूटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वंशिका परमार, उनने भी अपनी एडवोकेसीज को लेके काफ़ी काम करा है, तो वो एक और प्राउड मोमेंट है। आफ्टर दैट अलंकृता शाही हैं, वी चोज हर फॉर मिस डिवाइन इको एंजल बिकॉज उनके एडवोकेसीज में भी काफ़ी दम था, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था कि सिर्फ एक को कैसे दे दें बिकॉज सारी की सारी ही मेहनत कर रही हैं। तो जैसा कि दीपक जी ने बोला कि ये सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है एक विनर को, तो उसका उन सब की जर्नी में जो मज़ा आ रहा था उसमें काफ़ी हिम्मत भी मिली, काफ़ी डर भी लगा, लेकिन जब अब फाइनली यहाँ पे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। निमिषा सक्सेना जी, जिन्होंने शुरू से एंड तक 2019 में, 20 में, 21 में हमेशा लड़कियों के मतलब उनके बारे में यही बताएं तो अच्छा है। शुरू से एंड तक इन्होंने जो साथ दिया है, डायरेक्ट किया है, सब कुछ बहुत कुछ मतलब इनको सब कुछ पता है इसके बारे में, अब कुछ ही पूछ सकते हैं। देखिए माइंड सेट तो ये है कि सभी प्रिपेयर होके आते हैं, बाकी जो उस टाइम पे था उस टाइम पैंडेमिक का नहीं था, तो लड़कियों को उतना मिला था कि हाँ वो अपने आप को कर सकती थी प्रेजेंट। अब कि उसमें इन लोगों को वर्चुअली करना पड़ा है तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि वर्चुअली किसी चीज़ को आप कन्वे करते हो वो उतना आसान नहीं होता। सारी चीज़ें पैंडेमिक के टाइम पे आपको जो अरेंज करना वो सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है, तो माइंड सेट आई थिंक बड़ा ही है।